इसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसे इसको करते हैं. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो पहला कुछ है कुछ नहीं. अगर ग्रुप में अगर जी का ऑर्डर 1 है तो जी में देयर इज ओनली one element identity, then therefore it is clear that G is isomorphic to Z1, which contains 0, nothing interesting. So let us go to the second part. तो इसमें सेकेंड के लिए और थर्ड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट एंड सेवेंथ, मतलब ऑर्डर ऑफ जी जब भी प्राइम नंबर है, ओके, सो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. देन दैट इज व्हेन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 और 3 और 5 और 7, then G is cyclic because order of G is a prime number. Okay, then G is cyclic group. Then G is cyclic because order of G is a prime number. So every group of prime order is cyclic. So therefore इस case में we will have, so therefore if order of G is equal to 2, then G is isomorphic to Z2. मतलब कोई भी ग्रुप अगर है जिसमें दो ही एलिमेंट्स हैं वो Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा. अप टू आइसोमॉर्फिज्म इट इज Z2. वी से इट बिहेव्स लाइक Z2 itself. अब इसी तरीके से अगर ऑर्डर जी में 3 एलिमेंट्स हैं तो उस केस में G इज आइसोमॉर्फिक टू Z3. सिमिलर फॉर ऑर्डर 5 एंड ऑर्डर 7. If order of G is equal to 5, then G is isomorphic to Z5. Cyclic है, abelian भी है इस केस में, because it is abelian, order commutative है. So G is isomorphic to Z7. तो अब बचा हुआ 2 केस बचा है जब ऑर्डर G is 4 and order G is equal to 6. इसको अलग अलग तरीके से let डील करते हैं. Let the group G contains 4 elements. Order of the group G be equal to 4. इस केस में हम शो करेंगे, we show that, इस केस में we show that G either, okay, we show that either G is isomorphic to Z4 होगा, cyclic होगा, और G is isomorphic to external direct product of Z2 and Z2, which is basically clean 4 group, which is not a cyclic group. Commutative है, दोनों abelian तो हैं ही, okay, both will be abelian, but इस केस में you will have isomorphic to either it is a cyclic group है और it is non-cyclic group also exists of order 4. देखते हैं कैसे. देखो अगर G cyclic है, okay, if G is cyclic of order 4, if G is cyclic of order 4, then G is generated by an element A of order 4. So this implies G is isomorphic to Z4 itself. Easy to establish an isomorphism between these two. Suppose G is non-cyclic. मान लो G cyclic नहीं है. Suppose G is non-cyclic. It is not a cyclic group. इस केस में कोई भी एलिमेंट शो करेंगे. If you take any element x of G, x square will be equal to E. Let us see.
तो कोई भी एक एलिमेंट रख लो x फ्रॉम g, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट रख लो। अगर आइडेंटिटी होगा तो e स्क्वायर इक्वल टू e। सो देन बाय द corollary of Lagrange theorem, order of x divides order of g by the corollary of Lagrange theorem. Okay, Lagrange theorem, order of x divides order of g, or order g is equal to 4. So this implies order of x divides 4, और order of x can be, क्या क्या possibilities हो सकते हैं, 1, 2 और 4। अगर 1 होगा तो आइडेंटिटी होगा, लेकिन हमने नॉन आइडेंटिटी रखा हुआ है। ओके, इफ़ ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू e, तो 1 नहीं हो सकता। इफ़ ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज x पावर 4 इक्वल टू e, तो साइक्लिक हो जाएगा। ओके, इम्प्लाइज g इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 4, तो वो भी हमने अस्यूम किया कि नॉन साइक्लिक है, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ x हैज़ टू बी 2। ओके, सो देयरफॉर order of x has to be 2 for every x belonging to G, whenever for every non-identity element। लेकिन since e square is equal to e, तो ये भी satisfy करता है, therefore x square is equal to e for each x of the group G of order 4। तो इस केस में ऐसा अगर होता है, then we can show that G is abelian। This implies G is abelian। ओके, सिंपल एक्सरसाइज है, आप लोगों ने पहले भी किया होगा, और यू कैन ट्राई योरसेल्फ। ओके, तो इस केस में देखते हैं, इसका मतलब है कि G में क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक E रख लेते हैं, एक A, एक B और एक C। ओके, दिस इम्प्लाइज वेयर ऑल आर डिस्टिंक्ट, सारे डिस्टिंक्ट हैं। ओके, 4 एलिमेंट्स हैं, where all are distinct, 4 elements in the group G। okay, so हम शो करने वाले हैं, we show that AB is equal to BA equal to C। okay, we show that AB is equal to BA equal to C। this will ensure that the group is a clean 4 group। okay, कैसे, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। अगर ए बी अगर ई है तो भाई कैंसलेशन लॉ से हम मल्टीप्लाई कर लो ए से। ओके, ए बी इज इक्वल टू ई, सो दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए। ओके, ए बी इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई किया है मैंने, so this implies a square e है, this is e, so b is equal to a, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, पॉसिबल नहीं है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए है तो इसको भी वैसे ही जस्ट ए से मल्टीप्लाई कर लो फ्रॉम द लेफ्ट। ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी इज इक्वल टू ई, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी, तो इसको बी से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय बी, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय बी फ्रॉम द राइट, ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ई, तो ए बी आपका ई है, सो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ई, दिस ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी। अब इसी तरीके से आर्ग्यू कर लो। ओके, क्योंकि जी अबेलियन है, सो देयरफॉर जी अबेलियन इम्प्लाइज जी इज अबेलियन, इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू सी। सो देयरफॉर जो आपका ग्रुप कैसे मिला, हमें मिला जी इज इक्वल टू ई ए बी एंड ए बी, एंड a square is equal to b square is equal to e, and ab is equal to ba। okay,
तो ऐसा ग्रुप therefore, so this implies G is therefore, so this implies G is isomorphic. G is equal to V4. Okay, clean 4 group. Okay, clean 4 group. So अब Z2 प्लस Z2 से कैसे ये आइसोमॉर्फिक होगा देखते हैं. अब लिखते हैं व्हाट इज Z डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z2 एंड Z2 विद Z2. ओके, दिस कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट 0 0 1,0 और 0,1 एंड 1,1. ओके, therefore डिफाइन कर लो मैप. डिफाइन T फ्रॉम G टू Z2 plus Z2. Okay, if you define the map by this relation by TA is equal to 0 0 TE. Okay, T of A is equal to 1 0 या 0 1 रख लो. Okay, TB is equal to 0 1 and T of AB is equal to 1 1. टेबल बना के चेक कर लो कि T क्लियरली 1 1 है. ओके, क्लियरली T इज 1 to 1 on 2 and operation preserving. Therefore, in this case, G is isomorphic to the external direct product of Z2 and Z2. अब आगे देखते हैं.